Good morning, friends. How are you? I hope you all are well today. So, in the previous lecture, we have discussed introductory part of the Unit 3, digital system design, that is sequential circuit, and also we have discussed the basic building block of a sequential circuit. And today we will discuss the basic building block. What is that? Is flip-flop. Okay, so in this lecture we are going to discuss flip-flop. Okay, that is basic building block and capability to store one bit at a time. Okay, so first flip-flop we are going to discuss, that is SR flip-flop. Okay, that is SR flip-flop. So now here I am using NOR gate to make latch. Okay, you can also use NAND gate. So here the circuit diagram of this SR flip-flop is, so we are using NOR gate. This is Qn and Qn bar. This is cross feedback connection. We are making this is a latch. Okay, this is a latch using NOR gate. You can also use here NAND gate. Okay, don't worry. So this is a latch, and we are adding here in this latch a additional circuit. That is NAND gate. Okay, and here we are taking S and R, and now we are giving here, this is clock. Okay, so now we are here giving a clock. So this is the SR flip flop using NOR gate. ध्यान रखना है आपको, if you implement this SR flip flop using NAND gate, then this S will be here. Okay, अगर आप इसको NAND गेट को लेके यूज करना है तो ध्यान रखना, ये NOR गेट है तो NOR गेट में S जो है Qn बार के सामने है, S जो है Qn बार के सामने है. If you are going to design this SR flip-flop using NAND gate, then S will be the in front of Qn. ध्यान रखना, अगर आप यहाँ NAND गेट लगा दोगे तो आपका S Qn के सामने होगा. ठीक है, यही अंतर है उसमें और इसमें, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं यहाँ NAND गेट लगाता तो मेरा S यहाँ होता, R यहाँ होता, ये Qn बार ऐसे ही रहेगा. ठीक है, अभी S Qn बार के सामने है. यूज जब मैं क्या कर रहा हूं, यूज NOR गेट. ठीक है, NAND गेट यूज करेंगे तो आपका S Qn के सामने रहेगा, यही अंतर है. ठीक है, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस SR फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो हियर आप समझिए, पहले देखिए, इनपुट हम यहां देते हैं, आउटपुट भी हमें यही मिलता है. ठीक है, ये पिन इनपुट और आउटपुट दोनों का वर्क करती है. यही इनपुट देते हैं और नेक्स्ट स्टेट में जो रेस्पॉन्स मिलता है दैट विल बी द आउटपुट. मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट स्टेट जो मिलेगी दैट विल बी Qn+1. तो यहां पर जो प्रीवियस डाटा रखा हुआ है दैट इज Qn, एंड नेक्स्ट स्टेट data we will have that will be Qn+1, and for this Qn+1, Qn is the input. Okay, and here Qn+1 is the output.
So this pin is we are using here for both input and output. Okay, so and this will be the complementary. This will be the complementary of this output. अगर यहाँ 1 है तो 0, 0 है तो 1. अदरवाइज ऐसा अगर नहीं होगा तो फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड है, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा, अनस्टेबल है. ओके, तो इसकी ये कंडीशन है. आपका फ्लिप फ्लॉप ओके तभी होगा तब जब ये आपके आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे. ओके, सो तो आप देख सकते हैं यहां पर राइट साइड का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द लैच, दिस पार्ट इज द लैच, एंड लेफ्ट साइड पार्ट इज द what is the control part. This is control. ठीक है, using this part we can control the mode of this latch circuit. Okay, so this latch is the basic building block of this SR flip flop. Without this latch SR flip flop वर्क नहीं करेगा. ठीक है, so this is the control part and this is the latch. ओके, सो मैं यहां बता देता हूं आपको. QN आपका इनपुट, QN+1 आपका आउटपुट, S and R both are the control pins. ओके, both are the control pins. इनको चेंज करके हम इसके मोड को डिसाइड करते हैं कि ये लैच मोड में वर्क करेगा या ट्रांसपेरेंट मोड में वर्क करेगा. ठीक है, लैच मोड में वर्क करेगा या ट्रांसपेरेंट मोड में वर्क करेगा. दैट विल बी डिसाइडेड बाय दीज पिन्स. सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग SR पिन बोथ आर द कंट्रोल्स पिन्स. ओके, बट हम कह सकते हैं कि QN, S और R ये तीनों ही इनपुट को लिए वर्क करती हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आउटपुट मिलता है. तो वी कैन यूज वी आर यूजिंग हियर QN, S and R, all are the as a we are taking as a input. Okay, so here you can say so 3 input pins. Okay, so now we are going to design or to make a truth table. ओके, चलिए कितने इनपुट हमारे पास हैं? टोटल हमारे पास इनपुट पिंस 3 हैं, S, R एंड QN. तो हम S, R, QN ये हमारे 3 इनपुट पिन है. ठीक है, ये कंट्रोल पिन है, ये इनपुट है. करस्पॉन्डिंग टू वी आर गेटिंग द आउटपुट दैट विल बी QN+1. So what will be the truth table for this SR flip flop? So we are going to discuss. So suppose अब you have 3 inputs. So how many combinations you will have? 8. That will be 0, 0 and 0. ठीक है, तो पहले इसी के लिए बात कर लें. What will be the output? So suppose यहाँ पे आपका पहला वैल्यू 0 है, S और R आपके 0 ले रखे हैं मैंने, ये 0 है और ये 0 है और क्लॉक आपका 1. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आता है. ये 0 है, दिस इज 0, 0 एंड 1. तो 0 into 1 एंड गेट का एक भी इनपुट यदि 0 है तो आउटपुट विल बी 0. ठीक है, तो दिस इज द 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. ओके, सो द लैच इनपुट पिंस both are here 0 when the S is equal to R is equal to 0. so आप देख सकते हैं कि अगर मैंने 0 यहां से लिया तो ये 0 ये क्रॉस फीडबैक के थ्रू यहां आएगा. 0 + 0 0 और 0 का बाद 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, देख सकते हैं आप. अब ये 1 यहां से जाएगा इधर, 1 + 0 1, 1 का बाद 0. तो QN की वैल्यू 0 है और QN+1 क्या आ रहा है? 0. दिस इज QN+1. ओके, दिस इज QN+1. ओके, सो क्या आ रहा है?
जीरो। अब आप करते जाएंगे तो बार बार आपको यही जीरो मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका जीरो इसमें होल्ड हो गया है और लॉक हो गया है। यू विल ऑलवेज गेट जीरो इन दिस कंडीशन। सो हियर दिस एसआर फ्लिप फ्लॉप इज वर्किंग एज ए लैच, कि जो उसमें रखा हुआ है वही आपको अब मिलता रहेगा, दैट विल बी नॉट चेंज। चलिए, एस और आर जीरो हो सकते हैं तो क्यू एन की वैल्यू 1 हो सकती है। सेकेंड कॉम्बिनेशन से अगर हम 1 लेते हैं, अब मैं आपको इरेज कर दे रहा हूं, देखिए मेरे लिए आसान है थोड़ा सा करना, आपको समझना पड़ेगा। मैंने अब यहाँ पे क्या लिया है, 1 लिया है। तो चलो देखते हैं, ये तो जीरो जीरो ही रहेंगे, तो ये 1 यहाँ आएगा, 1 प्लस 0 1 और 1 का बार 0, और ये 0 यहाँ जाएगा, 0 प्लस 0 0 और 0 का बार 1, 0 का बार 1। तो अब आपने जो QN दिया था, QN प्लस 1 आपको वही मिल रहा है 1, तो आउटपुट क्या होगा मेरा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0 1 0। ठीक है, 0 1 0। तो इस कंडीशन में क्या होगी, अब मैंने इरेज कर देता हूं। अब मेरी वैल्यू S की वैल्यू 0 है और ये R की वैल्यू मेरी अब 1 हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मेरा Q1 का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो देखिए आप यहां देखते हैं 1 इंटू 1, अब ये वैल्यू आपकी 1 हो चुकी है। ठीक है, और ये 0 ही रहेगी। चलिए देखते हैं, 0 आया तो 0 प्लस 0 0 और 0 का बार 1, 1 ऊपर गया तो 1 एंड 1, 1 प्लस 1 1 और 1 का बार 0। तो आपने 0 दिया तो क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0 1 1। चलिए देखते हैं, अब इसको मैं चेंज करता हूं, क्या करता हूं, इसको 1 करता हूं, तब देखता हूं क्या होता है। तो क्या होगा, ये तो वैल्यू 0 है, ये 1 है, तो 1 आया, 1 प्लस 0 1 1 का बार 0 और 0 ऊपर गया, 0 प्लस 1 1 1 का बार 0। तो 1 दिया, आउटपुट अब आपको 0 मिल रहा है, अभी भी 0 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 0 0। ठीक है, 1 0 0, तो क्या बन जाएगा आपका। चलिए अब मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू कर दिया मैंने 1 और ये वैल्यू कर दिया मैंने 0, और यहां अब मैं पहले इनपुट देता हूं 0, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ये 1 दिया और ये 0 है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0, और ये 1 है, ये 1 है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अब देखते हैं, अब मैंने 0 दिया तो 0 यहां आया, 0 प्लस 1 1 1 का बार 0। ठीक है, 0 प्लस 1 1 का बार 0, 0 यहां गया तो 0 प्लस 0 0 और 0 का बार 1। फिर से देखते हैं, 1 आया, 1 यहां आया, 1 प्लस 1 1 1 का बार 0। अब देखो ठीक हो गया ये। फिर 0 गया तो 0 प्लस 0 0 और 0 का बार 1। आपको क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। ठीक है, 1 ही मिल रहा है। नेक्स्ट वैल्यू 1 0 1। पहले केस में देखो यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, लेकिन अब इसके बाद में ये कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा, ध्यान रखना। अब आपने क्या दिया, अब दिया आपने 1, अब आपने क्या दिया 1। चलो देखते हैं, तो 1 आया तो 1 प्लस 1 1 1 का बार 0, 0 गया ऊपर, 0 प्लस 0 0 0 का बार 1। अगेन आपको क्या मिल रहा है 1। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, 1 1 0। अब ये मेरी 1 है और R की वैल्यू भी मेरी 1 है। ठीक है, अब देखते हैं, 0 दिया आपने, तो देखते हैं, अब ये 1 1 है तो 1, यहां भी 1 1 है, तो आउटपुट आपका यहां भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 0 आया, 0 प्लस 1 1 1 का बार 0, 0 प्लस 1 1 1 का बार 0, फिर 0 आया, 0 प्लस 1 1 1 का बार 0। तो देख रहे हैं आप, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिल रहे। तो इन दिस केस दिस SR फ्लिप फ्लॉप इज नॉट वर्किंग,
this flip flop is under running condition and you can say the flip flop is a unstable condition, so the flip flop is not working here. Okay, so this flip invalid हो गया, ये मैं इसको कहता हूं डोंट केयर, इनवैलिड हो गया। अब मैं 1 ही 1 रखता हूं और 1 देता हूं अगर इनपुट, तो चेक करते हैं क्या आता है। 1 दिया, चलिए 1 आया, 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0, 0 गया, 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0, फिर 0 आया, 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0, 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0। अब देख रहे हो आप, ये फिर से रनिंग स्टेट में चला गया, अनस्टेबल स्टेट में चला गया, तो यहां भी क्या मिल रहा है आपको, इनवैलिड। तो आप देख सकते हैं ये आपकी ट्रुथ टेबल है, ठीक है, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर दिस सर्किट। ओके, तो अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए आप, पहले इन दो केसेस में जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो मैं कह सकता हूं कि Qn+1 क्या है मेरा, Qn ही है। यहां पर चाहे 0 दूं तब भी 0 मिल रहा है, 1 दूं तब भी मुझे 0 मिल रहा है, तो ये कंडीशन क्या होगी बेटा, रीसेट, मतलब जो वैल्यू है उसको 0 कर दिया उसने अंदर। इस केस में देखिए 0 दिया तब भी 1 कर दिया, 1 दिया तब भी 1 कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, वैल्यू को सेट। और ये कंडीशन क्या होगी बेटा, इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड कंडीशन, ठीक है। तो इस केस में आपका ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करता, ये इसकी ड्रॉबैक है। अंडर दिस केस S is equal to 1 and R is equal to 1, the flip flop is unstable and running, working under the running condition, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करता। तो यहां देख रहे हैं ये आपका लैच है, यहां पर ये जो इनपुट है वही आउटपुट है, इसको बोलते हैं लैच। तो केवल इस केस में वो एज ए लैच वर्क करता है। जब आपने कंट्रोल पिंस को 0 1 या 1 0 चेंज किया तब आपका लैच नहीं है, फिर वो रीसेट हो गया और ये सेट हो गया, ये मोड है, रीसेट मोड में वर्क कर गया और ये सेट मोड में वर्क कर गया। देखिए रीसेट पिन को आपने हाई किया तो ये रीसेट हो गया, सेट पिन को हाई किया तो ये सेट हो गया। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि ये पिन के थ्रू आप सिर्फ इसका आउटपुट जो है उसके मोड को इसके कंट्रोल, इसके एसआर फ्लिप फ्लॉप के जो मोड है उसको आप चेंज करते हो। ये जो मोड है ये ट्रांसपेरेंट मोड कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड, क्या करना चाहते हैं आप। केवल इस मोड में वो एज ए लैच वर्क करता है, ठीक है, जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये कंट्रोल पिन को चेंज करके आपको वो चेंज करना होगा, और तब आपका ट्रांसपेरेंट मोड में आपका फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, वो लैच मोड में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इतना आ गया। सो अब क्या करेंगे, अब ट्रुथ टेबल आ गया और ट्रुथ टेबल से हम बनाएंगे के मैप, और के मैप को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कितने हैं हमारे पास कॉम्बिनेशंस, 8, तो हम 8 का बना लेते हैं। ये जो फंक्शन आएगा आपका, ये क्या है, एस आर एंड क्यू एन, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इनके नंबर है। तो कहाँ कहाँ 1 है ये देख लेते हैं, 1 4 5 1 4 5 पर 1 है, और ये 6 7 पर डोंट केयर। तो आप ग्रुपिंग बनाएंगे तो एक तो ग्रुप आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी, आउटपुट क्या होगा, ये जो फंक्शन बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, Qn+1 के लिए बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा इसका फंक्शन, क्या कॉमन है बेटा इसमें, r, यानी कि ये और ये कॉमन है, तो ये क्या हो गया बेटा, r प्लस एक आपका ये ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन है, यहां पर देखिए
यहाँ पर सॉरी एस 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 कॉमन है, सेकंड वाले में आर बार और इधर क्यू एन। तो ये इसका बन गया बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अब आपको ये याद रखना है, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब ये टेबल है, इसमें देख रहे हैं आप एस और आर ये दोनों सेम केस हैं, तो मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूं, तो मैं एक फंक्शनल टेबल बना सकता हूं। एक फंक्शनल टेबल बना सकता हूं, तो उसमें क्या है, एस और आर इनपुट है, क्यू एन प्लस वन मेरा आउटपुट है। तो एस और आर दो आपकी वैल्यू है, तो चार कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिए 0 0 पे क्या आ रहा है, क्यू एन, 0 0 0 0 पर क्यू एन है आउटपुट, क्यू एन। 0 1 दिया, 0 1 दिया तो 0 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है। 1 0 पे 1 आ रहा है, 1 1 पे क्या हो रहा है, वो इनवैलिड। तो ये इसकी फंक्शन टेबल हो गई। ठीक है, ये इसकी फंक्शनल टेबल हो गई। यहां तक आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा। अब मुझे सपोज कीजिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको इंप्लीमेंट करना है, तो मेरे को क्यू एन प्लस वन मुझे चाहिए। सो दिस इज क्यू एन प्लस वन, मान लीजिए ये मेरा आउटपुट क्यू एन प्लस वन क्या है, ये इसका और इसका सम है। सम का मतलब और गेट पे दो वैल्यू आ रही है, एक तो एस है, ये आ गया, और दूसरा एंड गेट है, दो वैल्यू का मल्टीप्लाई, तो एक एंड गेट लगा दूंगा मैं। उस पर एक तो इनपुट क्या है, आर बार हो गया, और दूसरा इनपुट क्या है, क्यू एन। क्यू एन कहां से आएगा, यहां से आएगा, इसका प्रीवियस स्टेट जो रहा होगा वो क्यू एन होगा। तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इंप्लीमेंटेशन बन गया। ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों सेम वर्क करेंगे। ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, देख सकते हैं आप क्या चेंजेस हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बात कर रहे थे। चलिए, ये तो हमारा हो गया इंप्लीमेंटेशन। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमें कोई डिजायर्ड आउटपुट चाहिए किसी गिवन इनपुट के लिए, वी वांट टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। सो फॉर find out the desired output, how to excite the control pins. So how to excite the control pins so that we can find out the desired output for a given input. So suppose कीजिए कि मेरे अब हम बात कर रहे हैं एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल की बात कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको किसी दिए हुए इनपुट के लिए कोई आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, तो मैं एस और आर को किस तरह से एक्साइट करूं सो दैट मुझे गिवन आउटपुट के लिए डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। तो मेरा जो इनपुट है दैट इज क्यू एन, आउटपुट है मेरा क्यू एन प्लस वन। तो दो वैल्यू के साथ हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस यू विल हैव, 4, दैट विल बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब मुझे करना क्या है, करना मुझे ये है कि ये इनपुट के लिए ये आउटपुट आए, ये इनपुट के लिए ये आउटपुट आए, ये इनपुट के लिए ये आउटपुट आए, इसके लिए ये आउटपुट आए। तो हाउ टू एक्साइट कंट्रोल पिंस। कंट्रोल पिंस कौन कौन सी हैं यहाँ पे, एस एंड आर। अब मैं इन एस और आर को क्या दूं जिससे ये वैल्यू दूं तो आउटपुट ये आता है, ये दूं तो ये आता है। तो हाउ टू एक्साइट एस आर पिंस देखते हैं। चलिए, तो इसको हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये ट्रुथ टेबल को चेक करेंगे। तो बताइए कि जीरो के लिए जीरो आउटपुट कहां मिल रहा है, जीरो के लिए जीरो आउटपुट आपको एक तो ये मिल रहा है और एक आपको ये मिल रहा है। दो केस में आपको जीरो इनपुट के लिए जीरो आउटपुट मिल रहा है। इस केस में आप एस और आर देखिए क्या कह रहा है, तो एस जीरो है, यहां भी जीरो है एस, ठीक है। तो ये जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन यहां ये जीरो है और ये यहां पे 1 है। तो आर आपकी जीरो है एक केस में, एक केस में 1 है, लेकिन एस आपका फिक्स है, एस आपका जीरो है।
और आर आपका चेंज हो रहा है, कभी एक बार 0 एक बार 1 है, तो मैं इसको क्या लूंगा, डोंट केयर। अब देखते हैं 0 इनपुट 1 आउटपुट, तो 0 इनपुट, एक तो बेटा ये हो गया 0 इनपुट, फिर एक ही है 0 इनपुट और 1 आउटपुट, एक ही है, वो क्या वैल्यू है 1 एंड 0। अब 1 0 देखते हैं, 1 इनपुट है 1 इनपुट है और 0 आउटपुट है, ये भी एक ही केस है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 और 1। अब 1 इनपुट 1 आउटपुट, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इस केस में देखेंगे आप, ये वाला केस हो गया और ये वाला केस हो गया, तो यहां पर देख रहे हैं आप आर तो आपकी फिक्स है, लेकिन एस आपका चेंज हो रहा है 0 और 1, तो आर तो आपकी फिक्स है, वो वैल्यू कितनी है 0, और एक्स आपका एस आपका चेंज हो रहा है, तो ये बन गया। अब मुझे करना क्या है कि अगर मैं इस तरह से एक्साइट करूं तो मुझे करस्पॉन्डिंग इनपुट के लिए आपका डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, तो मैं इस तरीके से इनको एक्साइट कर सकता हूं, इसलिए मैं इसे कह रहा हूं एक्साइटेशन टेबल। तो आपको याद रखनी है ये एक्साइटेशन टेबल कब काम आएगी, जब आपको कोई फ्लिप फ्लॉप दिया है और वो फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से इफ यू वांट टू डिजाइन ए अनदर फ्लिप फ्लॉप, एट दैट टाइम यू विल नीड दिस एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, तो आपको ये एक्साइटेशन टेबल याद रखनी है। यहां से याद रखने की दो ही चीजें हैं, वन इज ट्रुथ टेबल, सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज दिस एक्साइटेशन टेबल। If you will have remember these three things, then you can design any circuit and you can convert any flip flop into another flip flop, whatever you want to design. तो देख याद करने की चीज क्या है इसमें, इसको याद करना है, इसको यहां से चलिए ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड 0 1 0 x s 0 1 0 x, फिर यहां से चलिए अपवर्ड 0 1 0 x, सेम है एस को आइए 0 1 0 x, फिर चलिए अपवर्ड आर में 0 1 0 x, सेम है, यहां से अपवर्ड है, यहां से फिर यहां से डाउनवर्ड है, यहां से अपवर्ड है, तो ये याद करने का तरीका है 0 1 0 x 0 1 0 x। ये जो चीज है ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, qn प्लस 1 चार कॉम्बिनेशंस 0 0 0 1 1 0 1 1, और s की वैल्यू 0 1 0 x और फिर 0 1 0 x आर का वैल्यू, तो ये आपको ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज द ऐसा फ्लिप फ्लॉप। अब मैं इसका एक बिल्डिंग डायग्राम बनाऊं, बेसिक डायग्राम बनाऊं, तो क्या बोलेंगे डायग्राम को हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे, तो ये आपका क्यू एन बार और ये आपका एस, तो यहां एस ऊपर नहीं दिखा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अगर ऊपर दिखा रहा हूं एस, यहां एस और आर, और ये आपकी क्लॉक। ठीक है, क्लॉक आपकी अगर ऐसी है तो ये पॉजिटिव लेवल है, अगर ऐसी है तो नेगेटिव लेवल है। ठीक है, और अगर आपका ऐसे है तो ये पॉजिटिव एज है, और अब कर दिया बबल लगा दिया तो ये नेगेटिव एज है। तो ध्यान रखना है आपको कि यहां किस तरह से नोटेशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या बन गया, एस आर फ्लिप फ्लॉप का सिंबल बन गया, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी इस समय पे यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रैवलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये है, अगर मैं ये एस को अभी यहां पर क्या यूज कर रहा हूं मैं, नॉर गेट, नॉर गेट में एस के आगे क्यू एन बार है। अगर मैं यहां पे यूज करता नैंड गेट, अगर मैं नैंड गेट यूज करता तो कैसे बन जाता ये, एस आर यूजिंग नैंड गेट, तो ये आपका क्यू एन रहता, ये आपका क्यू एन बार रहता, और ये आपकी क्लॉक रहती, ये आपका इनपुट होते, तब आपका जो एस है वो यहां होता और आर यहां होता, तब एस आपका क्यू एन के सामने होता। जब नैंड गेट को यूज करके करेंगे तो एस क्यू एन के सामने रहेगा, और यदि आप नॉर गेट को यूज कर रहे हैं तो एस आपका क्यू एन बार के सामने रहेगा। बस ये याद रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में ये भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिंबल्स है, इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें डिजाइन करना है। ठीक है,
और क्या क्या हमें याद रखना है आगे के लिए। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप मैंने बता दिया, इसकी ड्रॉबैक क्या है, ये 1-1 पर ये अनस्टेबल रहता है, इनवैलिड कंडीशन में वर्क करता है, वर्क नहीं करता। सो जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप आएगा उसके अंदर हम ये ड्रॉबैक है जो इसकी ये जो शॉर्टकमिंग है, वी विल ओवरकम यूजिंग द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, दैट विल बी जेके फ्लिप फ्लॉप। सो in the coming lecture we will discuss JK flip flop in which we will solve or we will overcome this problem, this shortcoming of this SR flip flop. This SR flip flop is not working under the condition S is equal to 1 and R is equal to 1, but in the JK flip flop we will overcome this shortcoming of SR flip flop and JK flip flop will work on S is equal to R, S is equal to 1 and R is equal to 1. So in the next coming flip flop in which we will remove this problem, that will be JK flip flop, and in the next coming lecture we will discuss JK flip flop. ओके, सो अच्छे से आप कनेक्ट रहिए और अच्छे से समझिए, आपको ये बहुत इंपोर्टेंट यूनिट है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे, जिसमें इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो कमियां हैं, हम उसकी ओवरकम कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिएगा एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक बनता है उसे आप कर दिया करें, उसके लिए मुझे बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप जानते हैं मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।